So once we have learned inert pair effect, obviously this makes us ready in order to dive into the p block and in order to understand some more interesting factors about this particular group. Now remember one thing, sir. If you study one group of p block property, that means at least the chemical and physical properties for a single group, that may be 15th group, that may be 16th, that may be 17th, or the 13th or the 14th group which are present in our first year. If you try to study any one group properly, and if you have understood what is happening in there, that is enough to understand all other groups. Okay, so that is the most important thing. If you understand one group, all other groups will follow from here. They are almost the same. Okay, that is what, that is the thing which I will be going to establish, and the p block will become very, very easy for you people. Okay, number one. And number two, how many of you remember that yesterday we tried to tell you that the first group of an element, that means the first element of any group, will always show anomalous behavior? Do we know this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let us talk about this 15th group elements. We will start from here. I'll talk about the 15th group and I will show you the similarities with all other groups all together. Okay, let us have a look. So when I say 15th group elements, what do we have in the 15th group, sir? Sir, in the 15th group, we are having nitrogen, we are having phosphorus, we are having arsenic, we are having antimony, and we are having bismuth. Yes, sir. So in the 15th group, we are having nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Now, if you have a proper look at any of these 15th group elements, we will find that they will be having a general electronic configuration of NS2NP3. Now tell me, when we see this NS2NP3, I will try to show you like this as orbital diagram like this. Now tell me, what do you people see over here? What is the first thing which you will observe about the 15th group elements from the electronic configuration? सर ये पूरा स्टेबल है सर, एक फुल फील्ड है और एक हाफ फील्ड है. Complete stable. Yes. So Stable. what do we know about this? Sir, it is having a stable electronic configuration. What type of stable electronic configuration? It is having a half-filled p subcell. Half-filled p subcell. Okay, so as it is having a half-filled p subcell, obviously, tell me, sir, what happens to the ionization enthalpy of this particular group? Okay, see, when it is having a half-filled configuration, that means it is having a very, very stable electronic configuration. If I want to talk about the ionization enthalpy, what do you people think about that? Tell me. सर वो डिक्रीज होगा क्योंकि साइज भी बड़ा हो रहा है. Decrease nahi, don't talk about decrease, increase. I am not decrease, not increase. I am asking you, they will be high. Yes, I am not asking. Did I ask whether we are going from top to bottom in a group? I did not ask anything. I am asking you people, if any element is having a half-filled configuration, then its ionization enthalpy is going to be high. Because एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है. How many of you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that means, sir, the 15th group elements ionization enthalpy अगर आप लोग compare करेंगे, if you compare with that of the 13th group elements, sorry, not 13th, if you compare it with that of the 14th group elements,
एंड विद दैट ऑफ द 16th ग्रुप एलिमेंट्स, दोनों के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ये हाई रहेगा, ये एक्सेप्शनली हाई रहेगा। याद कीजिए सर, एक्चुअली हम लोगों का आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड क्या हो रहा था, कौन बताएगा मुझे? फिर ज्यादा बढ़ रहा था What was happening to ionization enthalpy as we moved from left to right? Ionization enthalpy was increasing. Yes, Yes. or no? यस सर। Because हम लोग metals से non metals की तरफ बढ़ रहे थे. So in a period as we move from left to right, okay, याद कीजिए, सोडियम से हम लोग आगे बढ़े, say for example, राइट? तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। इन ए ग्रुप व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी कीप्स इंक्रीजिंग। बट देखो तो फ्रॉम द 14th ग्रुप 15th ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, लेकिन 16th ग्रुप का आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारा 15th ग्रुप से कम रहता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू। नाउ ये क्यों? तो हम लोगों को पता होना चाहिए, सर द 15th ग्रुप एलिमेंट्स हैव एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ड्यू टू द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने लोगों को समझ में आया ये बात? यस सर। ओके, तो देखिए सर, पीरियोडिक टेबल में जो पढ़े और हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे, मतलब और थोड़ा हम लोग डीपली जाएंगे। तो हैव अ क्लोजर लुक एट दिस सर। When we are going from left to right, what happens is the ionization enthalpy, okay, of the 15th group elements are exceptionally high. And why is that high? Exceptionally high. And why is that high? Because these elements have a stable half-filled configuration. Okay, yes, that is the first point which I would like to raise about our 15th group elements. Okay, done. Once we learned about this, let us move ahead. Okay, so let us move ahead and try to understand few more things. Okay, now see, sir. As you can see over here, I'm having in the 15th group nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. You can have a closer look over here that nitrogen is non-metallic in nature. Nitrogen is a pure non-metal. It exists in gaseous phase. It is a diatomic molecule. It will show negative oxidation states. And when you come down to bismuth, it is a pure metal. Okay, it shows complete metallic characters. Okay, so sir, the 15th group is very diverse. Okay, not only the 15th group, all the P block, मतलब पूरा का पूरा P block जो है काफी डाइवर्स है सर। यहाँ पे हम लोगों को नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, यहाँ पे हम लोगों को मेटल्स भी मिलेंगे, यहाँ पे हम लोगों को मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। Okay, so have a look, sir. Nitrogen and phosphorus are the non-metals which we are having. Arsenic and antimony are nothing but the metalloids which we are having. What are metalloids? These are those elements which can show the property of both non-metal and as well as your metals. They can behave as non-metals and as well as your metals. Such things we will call them as nothing but our metalloids. So I hope you people now understand why I call the 15th group elements to be so diverse, because the 15th group elements have got all the types of elements in them. Okay, they have non-metals, they have metalloids, and they also do have metals. Now the question is, sir, ऐसे क्यों सर? क्योंकि हम लोग तो p block elements पढ़ रहे हैं, then p block elements में इधर सबके सब नॉन मेटल्स होना चाहिए, लेकिन ये जो चेंज है ये क्यों आ रहा है? Why are we having non metals? उसके बाद बीच में मेटलॉइड्स क्यों आ रहे हैं और लास्ट में जाते जाते मेटल्स क्यों हो जा रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजंस हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे। One of the reasons
Okay, one of the most important reasons for this is size. Understand this. One of the most important reasons is size of the element. See, हम लोगों को क्या पता है, as we go from top to bottom in a group, what happens to the atomic size? इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो हम लोगों को अभी फिलहाल इतना ही पता है कि सर, as we go from top to bottom, the size of the atom keeps increasing. बट क्या हमें पता है वो कैसे कैसे इंक्रीज करेगा? दैट मीन्स, विल द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज वेरी वास्टली? क्या वो रेगुलरली इंक्रीज करेगा, इरेगुलरली इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा? तो हम लोग वो सारे बातें भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो तुम लोग देखोगे दैट नाइट्रोजन इज द स्मॉलेस्ट साइज्ड एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। पूरा 15th ग्रुप में सबसे टॉप में जो हमारा नाइट्रोजन है, ये सबसे छोटा है। यहां से फास्फोरस के बीच में जो है चेंज इन साइज काफी ज्यादा देखोगे। दैट मीन्स बहुत ज्यादा चेंज दिखेगा आप लोगों को, लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक जो है चेंज ज्यादा नहीं दिखेगा। द अमाउंट ऑफ चेंज विल बी वेरी वेरी लेस, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज विल बी वेरी वेरी लेस। आर्सेनिक से एंटीमोनी द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और भी कम होगा, मतलब इंक्रीज होगा बट और भी कम इंक्रीज होगा, राइट? इन द सेम वे देखिए, इंक्रीज होगा बट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज विल बी वेरी वेरी लेस। गिव मी अ मोमेंट। The amount of increase will be very very less. And then from antimony, when we go to our bismuth, the size will increase again, the amount of increase will be very very less. क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए तो सर, ये अगर एक 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट रेडियस का है तो इससे इसमें से फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा चेंज हम लोगों को मिला। ये 35 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स का रेडियस वाला एलिमेंट है, से फॉर एग्जांपल। दैट मीन्स व्हाट, 15 यूनिट्स का डिफरेंस आया। लेकिन फास्फोरस से जब आर्सेनिक चले जाओगे, ये अप्रोक्सीमेटली 38, दैट मीन्स सिर्फ 3 यूनिट्स का ही डिफरेंस दिखेगा। यहां से जब नीचे जाओगे, ये अराउंड 39 होगा, दैट मीन्स तुमको सिर्फ 1 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। और यहां से यहां जब चले जाओगे, से फॉर एग्जांपल ये 40 है, दैट मीन्स ये 40 भी नहीं होगा, से फॉर एग्जांपल ये 39.8 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स है, से फॉर एग्जांपल, तो बहुत ही 0.8 यूनिट्स का डिफरेंस दिखेगा। दैट मीन्स व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, there will be increase in size of the atom, but the amount of increase is not regular. Initially बहुत ज्यादा increase हो जाता है, but जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, the amount of increase जो है वो धीरे धीरे decrease हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? यस सर, यस सर। ओके, तो अब शुभम हम लोगों को पूछ रहा है व्हाट इज एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। सर, हम लोगों को पता है एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल्स टू 10 to the power of -10 मीटर। -10 मीटर। बच्चे सब भूल जाते हैं, हाँ। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज 10 to the power of -10 meters, right? Okay sir, do all of you have your textbooks in front of you? Yes, sir. यस। Okay, let us now go through the textbook. Okay, now we come to one more part of our P block where we will be discussing 15th group का occurrence के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर, आप लोग मुझे बताइए, बिना टेक्स्ट बुक पे देखे मुझे बताएंगे नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा occurrence कहां होता है? Where do we find nitrogen the most? एयर में। कहां पे? एयर में। Air, obviously in air. Almost 70% of our air, or precisely saying 78% volume of the air is our atmosphere, is nothing but nitrogen, that too molecular nitrogen, that is N2. Now the major source of nitrogen is air. Now think about this, sir. The second most abundant gas in our atmosphere after nitrogen is, tell me, do we know that?
ऑक्सीजन इट्स ऑक्सीजन। दैट इज द रीजन जब हम लोगों को अभी कोविड के टाइम में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा, ओके, वी वर इंस्टॉलिंग ऑक्सीजन, ओके, वी वर हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स, ओके। किसी किसी के घर में भी हम लोग जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगा के भी बहुत लोगों ने ऑक्सीजन यूज किया। ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ के वी वर हैविंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ऑल्सो, जो कि एयर को लेता था और उसको कंप्रेस करके वहां से नाइट्रोजन निकाल के ऑक्सीजन को देता था पेशेंट को, ओके। सो एयर इज अ मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। चलिए, बहुत अच्छा बात। बट अलोंग विथ एयर, what are other sources of nitrogen? Now, do you people remember biology classes where Yes. you people have been taught that our soil, in the soil, the nitrogen content must be maintained, जो कि नाइट्रोजन Yes, sir. फिक्सेशन से होता है, नाइट्रोजन साइकिल Yes, से sir. होता है, राइट, हमारा बायोलॉजिकल डिके से होता है, राइट। सो हम लोगों को नाइट्रोजन, स्पेशली जो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, वो ये सारे प्रोसेस से हम लोगों को मिलता है। बट सर, ऑन ए लार्ज स्केल अगर मुझे नाइट्रोजन देखना है अर्थ क्रस्ट से, मुझे नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड, तो कौन से फॉर्म में मुझे मिलेगा? तो देखिए टेक्स्ट बुक में सर क्लियरली आप लोगों को दिखेगा, इट इज गोइंग टू अकर एज सोडियम नाइट्रेट, दैट इज योर NaNO3, जिसको हम लोग चाइल्ड सॉल्टपेट्रे बोलते हैं, ओके। एंड इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3, ओके, जिसको कि हम लोग इंडियन सॉल्टपेट्रे बोलते हैं, ओके। योर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 is going to be child saltpetre, and child actually it's a name, place, okay, and potassium is Indian saltpetre, okay, बहुत अच्छा बात है। It is found in form of proteins in plants and animals, we all know this, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। What are proteins? अगर कोई तुम लोगों को पूछा, ओके, क्या तुम लोग बता सकते हो मुझे व्हाट आर प्रोटीन्स? These are the polymers of alpha amino acids, ओके। कोई भी आज के बाद आप लोगों को प्रोटीन्स के बारे में पूछेगा, क्या बोलेंगे आप लोग? These are the polymers, large compounds actually, polymeric chains of what, sir? Of alpha amino acids. Do we remember this? Will we remember this, sir? Yes, sir. Yes. So majorly in all the plants and animals we will find proteins. That is why people say when you eat, okay, green vegetables, okay, we will have a lot of iron and as well as proteins. In the same way, if you eat fish, if you eat egg, if you eat chicken, okay, you will be getting these proteins, okay, the amount of proteins. So generally we will find in plants and animals, we will have this in the form of nitrogen, in the form of proteins, and proteins are nothing but polymers of alpha amino acids. Is there any problem with this? No, sir. No, sir. No. Okay, so these are the major sources of nitrogen. Once again, sir, how does nitrogen occur around us in the earth's crust and in the atmosphere? Number one, the major source of nitrogen is our atmosphere, air, which has almost 78% of nitrogen, number one. Number two, the second major source are in the form of salts inside the earth crust. One is your sodium nitrate, NaNO3, another one is your potassium nitrate. Potassium nitrate is called as Indian saltpetre and NaNO3 is called as child saltpetre. Other than this, what are other sources? So all the biological living beings, all the living beings which we are having contain proteins in the contains nitrogen in their bodies in the form of proteins, and proteins are nothing but polymers of alpha amino acids. क्या ये clear है? Yes, sir. Yes. Okay, now let us go for the second element. How does the second element exist? तो हमारे ग्रुप में second element कौन है? Phosphorus. Let us understand how phosphorus exists, sir. Now phosphorus exists in the earth's crust because phosphorus is also a reactive element. अब नाइट्रोजन के जैसा ये डायटोमिक गैस बन के तो नहीं रह सकता है, नाइट्रोजन अपना गैसियस फॉर्म में। चलो आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। N2
जो मेरा डाई नाइट्रोजन गैस है, हाउ डज इट एग्जिस्ट सर? इट इज हैविंग a triple bond between the two nitrogen atoms. Yes or no? Yes, sir. तो ये जो नाइट्रोजन होता है सर, at low temperatures, at low temperatures, it is going to be inert. At low temperatures, it is going to be inert. What is the meaning of inert? Non-reactive. 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 ओके हम लोग इस चीज को ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में प्रूव कर चुके हैं बेटा। N2 के लिए हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकाला फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और हम लोगों ने बताया दैट नाइट्रोजन इज हैविंग अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, N ट्रिपल बॉन्ड N। यस और नो? यस। तो ये नॉन रिएक्टिव होता है सर। व्हाट मेक्स इट नॉन रिएक्टिव? व्हाई नाइट्रोजन इज नॉन रिएक्टिव एट लो टेम्परेचर्स? द रीजन बिहाइंड इट इज, देखो तो नाइट्रोजन को रिएक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नाइट्रोजन का बॉन्ड्स को तोड़ना है। बॉन्ड ब्रेक्स। बताओ तो बेटा। और नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन को तुम्हें अलग करना पड़ेगा। अब दोनों नाइट्रोजन को अलग करने के लिए कितने बॉन्ड्स आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा? देखिए तो 3 बॉन्ड आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा। So what will we say as the bond dissociation enthalpy? As the bond dissociation enthalpy of nitrogen is very large. Okay, as the bond dissociation enthalpy is very large, and hence we can say that it is very difficult to make nitrogen reactive at low temperatures. ये जो तीनों bonds हैं, इन्हें ब्रेक करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन इज एन, डाइनाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। बहुत बार लैबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में हम लोगों को एक नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर अगर चाहिए लो टेम्परेचर में, देन जनरली हम लोग इस पर्टिकुलर गैस को यूज करते हैं, दैट इज डाइनाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं। क्या सबको ये बात समझ में आ रहा है? यस Yes. ओके, ध्यान से देखिए सर, हम लोग बहुत बार मजाक उड़ाते हैं ओके अबाउट द चिप्स पैकेट्स विच वी गेट आउटसाइड, है ना। हम लोग लेज का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लाइक ये 10 रुपए में जो है 8 रुपए का हवा देता है और 2 रुपए का चिप्स देता है। एक्चुअली द रीजन इज, we know already, we have studied it in our 10th Yes, class, sir. rancidity. To avoid rancidity, okay, मेरा फूड आइटम्स को rancid होने से बचाने के लिए, so what is rancidity? कितने लोगों को याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, याद कीजिए सर, the oils in which these food items have been fried may come in contact with atmospheric oxygen and they may get oxidized. और वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो क्या होता है? फॉल स्मेल आता है और Yes, sir. सॉर हो जाता है मेरा फूड, एंड हम लोगों को खाने में बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू अवॉइड रेंसिडिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, उन फूड आइटम्स को नाइट्रोजन गैस से फिल किया हुआ एक पैकेट में रखते हैं। तो इससे क्या होता है? सो व्हेन यू फिल इट विद नाइट्रोजन गैस, एज नाइट्रोजन क्रिएट्स अ इनर्ट एटमॉस्फेयर, एज इट गिव्स एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, ओके, इट विल help us avoid the rancidity of the food items. क्या ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर This is also an Yes, sir. important question. देखिए सर, कितना लॉजिकल चीजें हैं, हम लोग इतना लॉजिकली हर एक चीज को पढ़ेंगे, एंड आई वांट एवरीथिंग इन योर नोटबुक्स, ओके राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करेगा करके। हाउ डज फॉस्फोरस एग्जिस्ट? Okay, now phosphorus will exist as either, okay, your calcium phosphate, that means we will call them as the apatite family. That means what? Especially ये double salts बनाते हैं। क्या बनाते हैं? Double salts बनाते हैं। Double salt. बात करेंगे इसके बारे में, क्या है ये, देखिए। So you will have, say for example, the very first compound I am having is fluoroapatite. Okay, fluoroapatite. What is that? Ca9, okay,
PO4 whole 6, these are very large compound. These are very large compounds, okay? Ca9 PO4 whole 6 dot CaX2, where X can be your fluorine, chlorine, or as well as your hydroxide. So if it is fluorine, then we will be writing it as Ca9 PO4 whole 6 CaF2. इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? फ्लोरापेटाइट बोलते हैं, बिकॉज फ्लोरीन है, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरापेटाइट बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया, ये जो है ये एपेटाइट फैमिली के कंपाउंड्स बनाते हैं। एपेटाइट मींस नथिंग, डबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम ये जनरली बनाते हैं। तो फ्लोरापेटाइट इसको बोलते हैं। नाउ इफ यू आस्क मी सर डू वी हैव टू रिमेंबर द नेम्स एंड दिस कंपाउंड, स्पेशली दिस कंपाउंड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, there is nothing here in order to remember, okay? No need to mug up this thing, just you have to know, okay sir how do they exist? They exist as apatite family, that means calcium का double salt बन के exist करते हैं, that's it, okay? उससे ज्यादा कुछ इसमें याद मत रखना आप लोग, कुछ नहीं चाहिए। चलिए, once this is done, phosphorus is also an essential constituent of animal and plant matter. तो आप लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा, बायोलॉजी वाले जितने भी हैं, हमारा डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियिक एसिड्स हैं, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहता है कि नहीं सर? हाँ सर रहता है। फॉस्फेट बेस हम लोगों को वहां पे एक अटैच होता है, राइट? सो फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन आर DNA, RNA, nucleic acids, okay, and all these places, okay? So that is why phosphorus plays an important role over there, and it is also present in our bones and as well as in living cells. Even in our living cells and as well as in our bones we have this phosphorus. Phosphorus is present in high quantity generally in milk and eggs, okay? कोई problem है इसमें? No sir. Okay, so once again अगर हम लोगों का occurrence के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपली हम लोगों को पता चल गया सर, occurrence बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन जो है सीधा सीधा हम लोगों को एयर में मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, जो कि 78% है। अदर देन दैट nitrogen can be existing as sodium nitrate, that is NaNO3, or it can exist as KNO3. If it is existing as NaNO3, then we will be calling it as child saltpeter. If it is existing as KNO3, then we will call it as Indian saltpeter. Other than that, the major source of nitrogen is in the form of proteins in your animals and as well as in your plants. Do we people understand this? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस के बारे में हम लोगों ने समझा, क्या पता चला हम लोगों को? मेजरली फॉस्फोरस जो है अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में हमें मिल रहा था? मेजरली इन द अर्थ क्रस्ट वी फाउंड फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट फैमिली। दैट मींस व्हाट? वी फाउंड देम एज जनरली डबल सॉल्ट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, ओके? कैल्शियम के साथ सॉल्ट्स बनाते हैं, ओके? Other than that, they are the most essential constituents in our animal and plant matter, that can be RNA, DNA, and as well as your nucleic acids. They are also present in the bones and the living cells. And what other things do we know? Phosphoproteins, that means proteins which contain phosphorus in them, are present in milk and egg. चलिए, तो हम लोगों को यहां से अब पता चल गया नाइट्रोजन का अकरेंस, फॉस्फोरस का अकरेंस। अब आते हैं हम लोग आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। रिमेंबर सर, as they, I told you, as we go from top to bottom, metallic character increase हो जाता है। तो आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ जो है मेटलॉइड्स है और मेटल्स हैं, दैट मींस थोड़ा सा मेटलिक कैरेक्टर दिखाते हैं। इसीलिए ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? जनरली दे एग्जिस्ट एज देयर सल्फाइड्स। याद रखेंगे आप लोग सर, arsenic, antimony and bismuth exist as their sulfides, okay, as their sulfide minerals. Arsenic sulfide, antimonic sulfide, bismuth sulfide, they will be existing as sulfides in the earth's crust. कितने लोगों को occurrence समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir.
जो मेरे साथ मेरे ही क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे उन लोगों को फटाफट याद हो जाएगा, उन लोगों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा. When I am teaching, it will directly get registered in your brains, okay? Because I keep repeating twice to thrice. तो जो लोग मेरे साथ साथ, मैं बोल रहा हूँ, माइक आप लोगों का ऑफ है, लेकिन मेरे साथ साथ आप लोग भी बोल रहे हैं. If you keep speaking, then obviously you people will also remember these things. Okay, चलिए. तो ये हो गया occurrence. Occurrence के बाद हम लोग सीधा चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे. सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 15th ग्रुप एलिमेंट्स, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. यस और नो? यस सर. यस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. दैट इज NH2NP3 and it is going to have half filled configuration. Now one of our students is asking, sir, PV अर्थ क्रस्ट में होता है? यस, फास्फोरस भी अर्थ क्रस्ट में ही होता है. सी, जब भी मैं बोलता हूं कोई भी मिनरल्स, दैट मींस मिनरल्स या सॉल्ट्स या रिएक्टिव फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में जो रहता है, वो रॉक्स के फॉर्म में, स्टोन्स के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में ही रहते हैं. ओके, माउंटेन्स के अंदर मिनरल्स जो है, या तो लैंड के अंदर, ओके, डीप इन द अर्थ जो ये है मिनरल्स हम लोगों को मिलते हैं. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई के बारे में. ओके, तो मैंने ऑलरेडी बात किया है इसके बारे में अभी अभी आप लोगों के साथ. एटॉमिक साइज के बारे में क्या बता दिया सर मैं आप लोगों को? एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इज नॉट रेगुलर. बताए थे ये चीज? यस सर. Yes. अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे लॉजिक बताएंगे आप लोगों को. राइट, व्हाई द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इज नॉट रेगुलर. चलिए मैं उसके बारे में भी बात करूंगा. लेट अस डाइव डीप इनटू द लॉजिक एंड अंडरस्टैंड, सर क्यों एस ब्लॉक में तो क्या मस्त इंक्रीज हो रहा था, नाइट्रोजन से पोटेशियम में इंक्रीज हो गया, पोटेशियम से रुबिडियम में इंक्रीज हो गया, रुबिडियम से सीजियम फ्रांसियम में इंक्रीज होते जा रहा है, मस्त रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? चलिए देखते हैं. ओके, क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए. To understand this, you people must first write the electronic configurations of these elements. तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे. चलिए, सो नाइट्रोजन क्या है? 1s2 2s2 2p3. फास्फोरस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. yes or no? यस सर. Yes, sir. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ओके, मैं 4s2, उसके बाद फिल होगा 3d10 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4p3. बट मैं सेल वाइज लिख रहा हूं, इसीलिए 3d10 पहले लिख रहा हूं. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर. No. ओके, सो इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे ऐसे अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, ध्यान से देखिए. 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p3. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? पहले ये बताओ. नो सर. No, sir. ओके, बहुत मजा आएगा. ध्यान से देखिए अभी आप लोग. वेरी वेरी लॉजिकल. ओके, हैव अ लुक. सर नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है ना, नाइट्रोजन में देयर आर 7 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन and there is K cell and there is L cell. In the L cell, because ये second period elements है, second period elements मतलब L cell में इलेक्ट्रॉन एंटर्स कर रहे हैं, तो L cell में इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पे जो शील्डिंग प्रोवाइड हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का K cell के वजह से शील्डिंग प्रोवाइड हो रहा है. एंड क्योंकि सेकेंड सेल में ही इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या हो रहा है सर, द साइज ऑफ द नाइट्रोजन इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, बिकॉज एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा है.
ओके, जिसके वजह से जो है न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पुल करके रखेगा, जिसके वजह से साइज जो है काफी छोटा रहता है। बहुत Yes, अच्छा बात। बट नाइट्रोजन से जब मैं फास्फोरस में एंटर करता हूं, देखिए तो बेटा, मैं जब फास्फोरस में एंटर किया, अब क्या हो गया, मैं फास्फोरस में जैसे ही गया, मेरा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो थर्ड सेल में एंटर कर रहे हैं। मतलब के छोड़ के, एल छोड़ के एम में एंटर कर रहे हैं। ओके, एम में एंटर कर रहे हैं। फास्फोरस का न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, 7 प्रोटॉन्स थे, अभी कितने प्रोटॉन्स हो गए, 15 प्रोटॉन्स हो गए न्यूक्लियस में। protons. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 15 protons हो गए, मतलब don't you Yes, agree sir. that the charge on the nucleus has increased? Yes, sir. And when charge on the nucleus has increased, और क्या हुआ, अभी शील्डिंग भी इंक्रीज हो गया। पहले सिर्फ के सेल इंक्रीज कर रहा, मीन शील्डिंग दे रहा था, अभी एल अब सेल भी K और L शील्डिंग दे रहा। हाँ, बट शील्डिंग क्योंकि ज्यादा हो गया, ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली पुल नहीं कर पाएगा जितना स्ट्रांगली नाइट्रोजन का न्यूक्लियस पुल कर रहा था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात, जरा बताओ Yes, तो। sir. आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड सर। नाइट्रोजन में शील्डिंग कम था, इसीलिए क्या हो रहा था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है बहुत स्ट्रांगली पुल हो रहा था। बट फास्फोरस में जाते जाते शील्डिंग ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है कम हो गया, इसीलिए जो है नाइट्रोजन से फास्फोरस जाते जाते मेरा साइज जो है बढ़ गया, काफी बढ़ गया। बट अब देखिए क्या हो रहा है, फ्रॉम फास्फोरस व्हेन आई एम मूविंग डाउन टू आर्सेनिक, देखिए अब क्या हो रहा है, फास्फोरस टू आर्सेनिक जाते वक्त इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स कहां एंटर कर रहे हैं, अभी एन N cell. शेल में एंटर कर रहे हैं। बट न्यूक्लियर चार्ज 2 इंक्रीज हो रहा है। ओके, कितना हो जाएगा, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा सर, 33। तो यहाँ पे 33 प्रोटॉन्स हैं, तो दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे शील्डिंग भी इंक्रीज हुआ, के सेल, एल सेल, एम सेल, लेकिन एम सेल में कौन आ गया सर, हम लोगों का जो 3d10 आ गया। ये Yes, जो sir. 3d Poor ऑर्बिटल्स shielding हैं, effect देता है। ये बहुत ही पोअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो Yes, sir. सर साइज काफी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन एम सेल में जो 3d है, इसका पोअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से जो है जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए था, देखो इतना इतना इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं होगा, तुम्हारा साइज जो है इतना में ही रह जाएगा। ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ किया, इतना ही तुम्हारा साइज रह जाएगा। कितने लोगों को ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. आया। Yes, sir. Yes, sir. सर वो कंप्लीट एन सेल में तो उतना नहीं रहेगा ना सर? क्या कंप्लीट एन सेल में उतना नहीं रहेगा बेटा? सर वही बोल रहा हूँ, वो साइज वाला जो आप बोल रहे हैं। एन सेल जहां होना चाहिए वहां नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स उस एन सेल के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है और नजदीक आ जाएंगे। और बात है क्यों नजदीक आएंगे, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सर क्यों लार्ज हो गया, क्योंकि ना सब ये डी ऑर्बिटल का गलती है, ये ना शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, ये शील्ड नहीं कर पाता है न्यूक्लियर फोर्स को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से, जिसके वजह से न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांगली पुल कर लेता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। क्या ये समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, इसीलिए क्या हुआ सर, इसीलिए क्या हुआ, नाइट्रोजन से फास्फोरस बहुत ज्यादा साइज इंक्रीज हो गया, लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक जो है साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये देखो, ये फास्फोरस का, ये आर्सेनिक का, आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, स्लाइट और अ वेरी लेस change in the atomic size is seen. Now इसके नीचे जब आर्सेनिक से एंटीमोनी जाएंगे, अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर एंटीमोनी में जाते जाते यहाँ पे तो दो डी ऑर्बिटल्स, 3d10 भी है, 4d10 भी है। सर ये तो शील्डिंग और कम कर देते हैं। दैट मींस न्यूक्लियर फोर्स जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन तक और स्ट्रांगली पुल करेगा, इसीलिए साइज जो है ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट उससे थोड़ा ही बड़ा रहेगा, बट ज्यादा डिफरेंस जो है नहीं आएगा। अब कितने लोगों को ये समझ में आया दैट व्हाई the amount of increase in the atomic size is not regular as we go from top to bottom in a group? यस सर आया। Yes, sir. Ajay. Yes, sir. Now, अब अगर मैं आप लोगों को एक सबसे मजेदार बात बताऊं तो सर ये 15th ग्रुप के लिए जो भी हम लोग अभी पढ़े सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यही वैलिड है। दैट मींस इवन 15th ग्रुप में जैसे जैसे नाइट्रोजन से फास्फोरस ज्यादा इंक्रीज हुआ, उसके बाद कम 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 इंक्रीज हुआ, 16th ग्रुप में ऑक्सीजन से सल्फर इंक्रीज जो है ज्यादा रहेगा, सल्फर से सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम में इंक्रीज जो है बहुत कम 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 इंक्रीज होगा। यही सेम चीज 13th ग्रुप में भी वैलिड है। आप लोगों का बोरोन से एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा साइज इंक्रीज होगा, एल्यूमिनियम से गैलियम, इंडियम, थैलियम जो है साइज बहुत कम कम इंक्रीज होगा। दैट मींस अगर हम लोग ग्रुप्स को कंपेयर कर करके पढ़ेंगे, एक ग्रुप पढ़ने से सारे ग्रुप्स का प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता चल जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? यस सर आया। Yes, sir. Ajay. तो जब मैं 16th ग्रुप में यही सेम चीज बताऊंगा तो मुझे ज्यादा इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा ना सर? आप लोग No, जल्दी जल्दी समझ जाएंगे ना? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए अब ये छोटा छोटा 4 लाइन जो हम लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया है उसे पढ़ लेते हैं। कोवेलेंट एंड आयोनिक इन ए पर्टिकुलर स्टेट, रेडाई increases as we go down the group. देखिए, there is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. नाइट्रोजन से फास्फोरस के बीच में there is a considerable increase, काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। Now, however, for arsenic to bismuth, only a small increase in covalent radius is observed. This is due to the presence of completely filled d and or f orbitals in the heavier members. क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। Everyone, I want answer from everyone, sir. Yes. Yes, sir. See, if I Yes, would sir. have felt, I would have just told you, अरे टॉप टू बॉटम जो है ना पहले बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बाद में कम इंक्रीज होता है, खत्म, आगे बढ़ जाता। But understanding logic will help you to remember these things for a long time. Okay, चलिए, तो एक ही साथ हम लोगों का सारे ग्रुप्स के 15, 16, 17, 18 सबका एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्यों इरेगुलरली इंक्रीज होता है पता चल गया, खत्म। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। बताओ तो सर, अगर मैं टॉप टू बॉटम, ओके, मैं आयनेशन एंथैल्पी का बात करूंगा, टॉप टू बॉटम आयनेशन एंथैल्पी का बात करूंगा, बताओ तो सर, हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या बात किए थे? एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीजेस। क्यों Yes, बोले थे? बिकॉज क्योंकि साइज atomic size increase हो इंक्रीजेस, बिकॉज साइज इंक्रीज होगा। बहुत अच्छा बात है। अब देखो तो यहाँ पे भी दो बहुत कम कम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? यस सर। Yes. यस। sir. तो इंक्रीज हो रहा है मतलब आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा कि नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर sir. होगा। यस, लेकिन ध्यान सर ये भी थोड़े दीजिए, थोड़े होगा क्या सर? हाँ, नाइट्रोजन से फास्फोरस बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा आयनेशन एंथैल्पी, लेकिन फास्फोरस से नीचे नीचे जैसे जाएंगे द अमाउंट ऑफ डिक्रीज विल बी वेरी लेस। चलिए हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, बहुत ही कीनली पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या हम लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ first ionization enthalpy, what is the meaning of second ionization enthalpy, what is the meaning of third ionization enthalpy? क्या ये पता है हम लोगों को? पढ़े हैं हम लोग? ओके, फर्स्ट ionization enthalpy means removal of the last electron, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, एक न्यूट्रल एटम से पहला लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, हम लोग इसको फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बोलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने को सेकंड आयनेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सेकंड वाला को भी रिमूव कर देने के बाद थर्ड को रिमूव करने को थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड वन इज कॉल्ड एज
थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। क्या ये याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल मैंने सोमोदीप का दिया था। पहली बार जब वो जाता है मार्केट, तो वहां से उसके पर्स चोरी होना जो है बहुत ही इजी हो जाता है। बट दूसरे दिन पर्स चोरी होना बहुत मुश्किल है। तीसरे दिन और भी ज्यादा मुश्किल है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है लो रहता है, बट सेकंड आयनेशन एंथैल्पी थोड़ा लार्ज हो जाता है, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी और लार्ज हो जाता है। बोलो शुभम, क्या डाउट है? सर वो एक ही सेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना सर, या फिर डिफरेंट सेल से जाएगा? लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है? 3p में है, थर्ड सेल में है, तो इसी में से जाएंगे, राइट? पहले Yes, sir. 3p का ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो चलिए अब हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में बहुत ही क्लोजली देखेंगे। ठीक है, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में एक टेबल है, देखिए आप लोग, प्रॉपर्टी करके लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। Yes, नीचे sir. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ दिया हुआ है। वहां पे फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसको ध्यान से देखिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से फास्फोरस, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 आप लोग देखिए, वहां पे नाइट्रोजन से फास्फोरस जो है अप्रोक्सीमेटली जो है आप लोगों का 400 यूनिट्स का डिफरेंस है। आप लोगों का 400 यूनिट्स। हेलो, यस। ओके, उस टेबल को ध्यान से देखिए सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, दैट मींस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वहां पे देखिए नाइट्रोजन का कितना है 1402, फास्फोरस का कितना है 1012, अराउंड 380 यूनिट्स का डिफरेंस है। दिख रहा है कि नहीं? Yes, यस सर। sir. बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ। लेकिन वहां से आर्सेनिक तक देखिए तो फास्फोरस से आर्सेनिक सिर्फ अराउंड 100 यूनिट्स भी कम नहीं हुआ है, अराउंड 50 यूनिट्स कम हुआ है। दिख रहा है? यस सर। Yes, That means sir. Yes, sir. from nitrogen to phosphorus, ionization enthalpy decreases vastly. But from there, the amount of decrease becomes very, very less. अब देखिए, आर्सेनिक से अब एंटीमोनी में जाइए, अराउंड वहां पे भी तुम लोगों को 40 और इधर 70, दैट मीन्स 40 70 110 यूनिट्स का डिफरेंस दिख रहा है। उसी तरह से एंटीमोनी से बिस्मथ भी आप लोगों को अराउंड उधर 30 और इधर 100, अराउंड 130 यूनिट्स का डिफरेंस दिख रहा है। दैट मींस व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, सर फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो है कम डिक्रीज होता है। कितने लोगों को ये समझ में आया? यस सर आया। यस सर। और इसके पीछे लॉजिक भी Yes, समझ में आया कि नहीं सर? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते वक्त एटॉमिक साइज भी तो वैसे ही वेरी करता है। पहले नाइट्रोजन टू फास्फोरस बहुत डिक्रीज हो गया, इसीलिए सॉरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत कम हो गया। बट उसके बाद जो है एटॉमिक साइज बहुत कम वेरी कर रहा है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत कम वेरी करेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर आया। yes, sir. Okay, now let us talk about the second ionization enthalpy। मतलब सर पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। आप लोग बताइए सर, नाइट्रोजन इतना छोटा सा एलिमेंट है, उसके ऊपर एटॉमिक मींस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना लार्ज है, उतना हाई है, वहां से
दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा कि नहीं, बताओ? यस सर। यस यस सर। सर। इसीलिए इसका आयनेशन एंथैल्पी कितना है, 2856, पहले वाले से ऑलमोस्ट डबल। बट सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी भी सेम वैसे ही वैरी कर रहा है। देखो पहला 2856 से 1903, बहुत ज्यादा डिफरेंस, उसके बाद जो है कम 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 डिफर कर रहा है। सो आई होप नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड हाउ योर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वैरिंग एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। और आप लोगों को अभी लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। Yes, sir. जो लोग सच में इन्वॉल्व Yes, हो sir. रहे हैं इस चैप्टर में, those people will really enjoy this chapter because it is so logical, everything is so connected. आप लोगों को बहुत बहुत मजा आएगा, राइट? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट है आज का कन्वर्सेशन में, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट डू वी नो अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जरा बताइए तो मुझे। सर जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी। Yes, it is the capacity of attracting a shared pair of electrons towards itself. Okay, the tendency or the capacity to attract a shared pair of electrons towards itself is called as electronegativity. तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़े थे बेटा? जितना लेस साइज होगा, जितना स्मॉल साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना हाई होगा। यस और नो? यस सर। Yes. बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उतना हाई होगा, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाई रह रहा है। सो लोअर द साइज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आप लोगों को भी बहुत ही क्लियरली दिख रहा है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। यस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ के बीच में, या फिर एंटीमोनी बिस्मथ के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दीज आर मेटल्स। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा? नेग्लिजिबली लेस। तो इसीलिए नाइट्रोजन से फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखेगा। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा नाइट्रोजन है, उसके नीचे नीचे जैसे आप लोग जाएंगे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी डिक्रीज हो जाएगा। नाउ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज, जो हम लोग 15th ग्रुप के लिए अभी पढ़े, एटॉमिक रेडाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज द सेम थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर इवन योर 16th ग्रुप, 17th ग्रुप। इट इज द सेम थिंग। तो जो लोग, आप लोगों के लिए आज होमवर्क क्या है, आप लोग बैठ के 16th ग्रुप में जाएंगे और वहां पे भी आप लोग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही 4 पॉइंट को फिर से देखेंगे। तो आप लोगों को पता चलेगा जो हम लोग 15 ग्रुप में पढ़े वही हम लोग 16 ग्रुप में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग 15 ग्रुप में पढ़े वही हम लोग 17 ग्रुप में भी पढ़ रहे हैं। क्या ये क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो this is how we touched the physical properties, या एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। कल हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग कौन सा गैसियस फेज में एग्जिस्ट करेगा, कौन सा सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा, इनका मेटलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा, एलोट्रोपी कौन कौन शो करेगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कल। टिल देन read the textbook once again, okay, listen to my class once again, okay, that will help you a lot sir। P block में यही ज्यादा help करेगा, okay, so do that। We will meet again in our next class, that is tomorrow। Till then have fun sir। चलिए bye bye। Thank you. Bye, sir.